Mitesh 11 won the toss and they elected bat first. प्रारंभिक जोड़ी अब क्रीज की तरफ बढ़ती हुई वैभव पाटिल और उनके साथ एक बार फिर से शैलेश का फॉर्म चिंता का विषय रहा है कहीं ना कहीं। 2 डक्स पहले दोनों मुकाबलों में, इस मैच में दबाव काफ़ी रहेगा क्योंकि प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है, लेकिन मौका फिर से मिला है। कप्तान का भरोसा है, टीम का भरोसा उनके ऊपर है, उस पर खरा उतरना होगा। अजय, कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। आपको लगता है कि इस मुकाबले में एक तरफ नेवा पाटिल का एक्सपीरियंस और एक तरफ राम ठाकरे का एक्सपीरियंस काम करेगा? जी ज़रूर, अनुभव तो बहुत काम की चीज़ होती है और दोनों का अनुभव काफ़ी मायने रखता है अपने अपने टीमों के लिए। लेकिन अन्य जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी खासतौर पर, उनका अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर चाहिए। दोनों अनुभवी खिलाड़ी चाहेंगे कि उनके जो युवा खिलाड़ी है, नेवा पाटिल भी यही चाह रहे हैं कि शैलेश खुलकर बल्लेबाजी करे, अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दे उनकी टीम को। मैच की शुरुआत की जाए। त्रिशूल टाइगर गेंदबाजी की शुरुआत करने आ रहे हैं। त्रिशूल टाइगर टर्न फ्रॉम कुरुंद एंड फार एंड, facing him batsman Shailesh, the captain. Shailesh Patil facing Trishul Thakre. Up to the wicket now. Position, oh beauty. Beauty, batsman try to max room. Lucky for him not played on. Yes, slice of luck there for the batsman. The ball kept very, very low. And luckily it did not go onto the stumps. But good delivery to start the proceedings here by Trishul Thakre. Dot ball. And there we watch Trishul Tiger. Up to the wicket now. Goes to Saleh. Sweep does ball. Straight to fielder. One was very rapid indeed. A lap sweep. But straight to fielder and Shailesh off the mark with 1 and Mitesh 11 Kurund 1 for no wicket. First runs in this tournament for Shailesh Patil. Now Vaibhav Patil on his strike, young talented batsman. This time in the air, could be caught. Oh, fine effort from the fielder, but finally put down and batsman taken 2. There is a prize for 3 consecutive sixes for Vaibhav Patil from Wonder Boy of PTC Bablu Patil, 2,000 rupees cash prize, and he's very capable of hitting consecutive sixes. We have seen many times in this But last, PTC. yes, last one was unconventional stroke. Oh, beauty, beauty, appeal for caught behind. Very loud shot indeed. Once more, batsman looking for a cut stroke. Very loud appeal indeed. But umpire Shanu Qureshi unmoved. In fact, Tiger was celebrating a wicket there. Yes. Similar appeal yesterday night in the semi-final when bowler and wicket-keeper celebration of the wicket of David Warner. Too much enthusiasm from Koshimbi's players. But that was a good delivery, a little bit extra bounce. Very close to the bat. It has been a so far wonderful start from Trishul Tiger. As far as bowling concerned, this time another fine delivery, thick outside edge, rose to third man. Well cut off from the fielder, meanwhile batsman gets 2. This is the good bowling, maintain very good length and line. And the line of attack is around the off stump from Trishul Tiger. And he's changing the length a little bit. Sometimes he's bowling fuller length deliveries, as the previous one was fuller length delivery. But lucky edge there for the batsman Vaibhav Patil. Couple of runs there for the takings. Score moves up to 5 runs without loss. It's a quite slow start for Kurun team. Right arm over the stumps. Oh, beauty. Swinging Yorker. What a over. What a over. Turn from Trishul Tiger. Consider only 5 runs. Great bowling. And round of applause from the crowd. Good piece of bowling in this first over by Trishul Thakre. He used all his experience in the power play over. Just 5 runs conceded in first over. Excellent stuff from Trishul Thakre.
1 ओवर 5 रन। ऐसे लगता है कि इस मैच में जितना सुपर ट्रॉफी को सुपर बनाने के लिए त्रिशूल ठाकरे और नेवा पाटिल ने मेहनत की है, उतना इस मैच में भी मेहनत की जा रही है। उसका साफ सबूत है कि क्या ओवर किया है। लेकिन अब नेवा पाटिल की बल्लेबाजी बाकी है, क्योंकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। और रोशन पाटिल वीआईपी डाइस पे दोनों के परफॉर्मेंस को देख के काफी खुश है। देखिए 3 स्टार ट्रॉफी अर्जोली जो होने जा रही है, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं मजहर पटेल, सूफी पटेल, तंजीब पटेल। 23, 24, 25, 26 दिसंबर और मौजम से और आसिफ चिमनाट से आप रब्ता कर सकते हैं टीमें फॉर्म के लिए। नेवर लेकर बायत के गेंदबाज ऋतिक। ओ बढ़िया गेंद। इनको तो ऐसे लग रहा है यॉर्कर खाने की आदत है, डालने की नहीं। जिस तरह ऑफ स्टंप के बाहर स्विंगिंग यॉर्कर किया था। अच्छी गेंद से शुरुआत यहाँ पर करते हुए ऋतिक। और ऋतिक आज के दिन में ज़रूर सफल रहे हैं। पहले मैच में भी एक अच्छा ओवर, उसके बाद दूसरे मैच में भी बड़ी उपयुक्त गेंदबाजी उनकी रही थी और मैच जिताने में कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी कोशिम्बी टीम के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए फुल टॉस गेंद गलत एड्रेस पे चली गई। इस गेंद का एड्रेस स्क्वायर लेग बाउंड्री था, लेकिन लिविंग एज लगा। अब क्या किया जाए, वो वही कहावत है ना कि आपकी किस्मत खराब है, आप ऊंट पे भी बैठो तो आपको चूटी काट लेंगी। फॉर्म बड़े काम की चीज़ होती है किसी भी बैट्समैन के लिए। वो अच्छे फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं वहाँ पर शैलेश पाटिल। एक बड़ा शॉट मुझे लगता है उनको चाहिए। एक आध बाउंड्री आती है, उनके बल्ले से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, उसके बाद और अच्छे शॉट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोनों बैट्समैन अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, एतमाद से नहीं खेले हैं। इस मरतबा उछाल दिया, 6 रन। आप कह दिया वैभव ने कि नहीं चलेंगी ये रनबंदी। बहुत अच्छा स्ट्रोक, यॉर्कर का फिर से प्रयास था, लेकिन जरा सा मार्क मिस किया वहां पर बॉलर ने। ओवर पिच हुई गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया। ऊंची बैकलिप से खेलना पसंद करते हैं, ऑन साइड में लॉफ्टेड शॉट और इस मैच का ये पहला सिक्सर बैट्समैन वैभव के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ कुरुन टीम का 12 रन। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो बबलू पाटिल की ओर से वैभव के लिए 2000 रुपयों का कैश प्राइज है। हाँ, उनकी तरफ से इनाम भी, और वो देखना भी चाहते हैं कि सेमीफाइनल में उनके सामने नेवा पाटिल आते हैं या त्रिशूल टाइगर आते हैं। वो ज्यादा इस मैच को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बहरहाल नीट एंड क्लीन पिकअप, जैसी गेंद वैसी नसीहत। ऋतिक लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, एक और आसमानी टोला। ओ हो क्या शॉट है, 6 रन। टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर, सुपर ट्रॉफी षटकार। कहीं ना कहीं गेंदबाज जो है वो प्रेडिक्टेबल भी हो रहे हैं, लगातार आगे गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके लिए पूरी तरह से तैयार। ये गेंद भी कमजोर थी, ये भी ओवर पिच थी और ये तो उससे भी बढ़िया शॉट, पहला सिक्सर लगाया था उससे भी अच्छा ये शॉट है और सीधे वीआईपी डायस के पीछे भेज दिया ऊपर से। 6 रन। ये शायद वैभव पाटिल ने भी सोच लिया कि टाइगर को छोड़ दिया, अगर ऋतिक को छोड़ा तो मैच छूट जाएगा। 2 पे 2 ठोक डाले और जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए उनका जो खेलने का अंदाज है, वो थोड़ा सा अपने आप को अंदर लाते हैं शॉट खेलने जब जाते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो लाजवाब है उनका, लेकिन ये सामने शॉट खेले गए। एक और सिक्सर, सिक्सर का हैट्रिक। व्हाट अ बैटिंग। और 2000 रुपयों का कैश प्राइज भी अपने नाम कर लिया है बबलू पाटिल ने जो रखा था। गजब की बल्लेबाजी। गेंदबाज अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे सिद्दीक जी। यहाँ पर हमने देखा कि लगातार ओवर पिच गेंदे कर रहे हैं। यॉर्कर की जो कोशिश है वो पूरी तरह से नाकामयाब और क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को उड़ाया। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। वैभव पाटिल इज ऑन फायर विथ ऑल सिलेंडर्स। देखिए बबलू पाटिल ने 2000 का इनाम रखा था, वो तो वो जीत गए, लेकिन उनका सरदर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि ठीक है आप 2000 रुपये इनाम दे रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, उनकी सराहना करना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए आप सेमीफाइनल में, एक टीम फाइनल में पहुंचेंगी, एक इनाम की तो बड़े इनाम के हकदार होंगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बबलू जो है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं बल्लेबाजी वैभव पाटिल की। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, एक और
घुटना टेक और सिक्सर देख, बैठक शॉट। ये लगा सुपर ट्रॉफी चौकार। ये तो सिक्सर लगाया है और ये छक्का नंबर 4, लगातार 4 गेंदों में 4। इस बार ताकत ज्यादा नहीं जो कि थी, टाइमिंग लाजवाब थी और फिर से छक्का मिड विकेट की तरफ इस बार खेला और 6 रनों की बदौलत स्कोर 30 पर पहुंच चुका है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वैभव और 2 ओवर का खेल अब जाकर समाप्त हुआ है। ऋतिक ने सिल्वर जुबली मना ली, 25 रन खर्च किए। क्या शॉट खेला, थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा कि जॉर्ज बेली या माइकल क्लार्क इस शॉट को खेल रहे हो। कमाल का शॉट। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 30 और 3 ओवर्स का खेल यहाँ से पारी में शेष है। एक बड़े स्कोर की तरफ इस समय अग्रसर मितेश 11 कुरुन। टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया है कप्तान द्वारा, उसको सही साबित करते हुए वैभव पाटिल खास तौर पर, शैलेश हालांकि अभी भी अच्छा योगदान नहीं दे पाए हैं लेकिन डटे हुए हैं। 4 गेंदों में 2 रन बना पाए हैं केवल। वैभव ने 4 लगातार छक्के लगाए हैं 28 पर इस समय खेलते हुए। बहुत खतरनाक अंदाज वैभव का। पहले मैच में भी उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी, 27 रनों की शानदार पारी खेली थी और पिछले मैच का जहां तक सवाल है उसमें भी उन्होंने 15 रन बनाए थे। तो गजब का फॉर्म नजर आ रहा है वैभव का। और मैंने पिछले मैच में भी जिक्र किया था, खासतौर पर पहले राउंड के मैच में, कि इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं वैभव। नए ओवर लेकर गेंदबाज, गेंद हवा में है, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, विकेट कीपर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए, बाउंस पर उठाया, कोई रन नहीं इस गेंद पर। गेंदबाज है इस ओवर में सूरज। देखिए, शैलेश और वैभव दोनों भाई भाई हैं, लेकिन क्रिकेट में ना कोई गुरु, ना कोई चेला, ना कोई भाई, ना कोई भतीजा। लेकिन पीटीसी क्रिकेट में भाइयों की जो जोड़ियां है उसमें हम देखें तो बबलू और बंटी की जोड़ी विकी स्पोर्ट्स के लिए, सुरेश पारदी हनुमान पारदी की जोड़ी जाम्बुलपाड़ा के लिए। ओ इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है आसमान में, पड़गा के नील गगन में गेंद, 6 रन। खरबूजे को देख खरबूजे ने भी रंग बदल दिया है और जहां सिक्सर लगा रहे थे और वैभव, वहां सिक्सर लगा शैलेश ने। हमारे बीच डबल ए स्पोर्ट्स और नो बॉल का इशारा है और ज़ारा स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर मोहतरम जफर पटेल साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सुपर ट्रॉफी में, मोस्ट वेलकम। और सही टाइम पे आए हैं क्योंकि नेवा पाटिल और त्रिशूल टाइगर आमने सामने हैं। 9 गेंद है तो अगली गेंद पर फ्री हिट मिलेगा। शैलेश का आत्मविश्वास जरूर अब बढ़ेगा। फिर से उठाना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं है, कारपेट के सहारे गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन लेने का अवसर। फुलर लेन की गेंदबाजी ज्यादा देखने को मिली है। एक ताज्जुब आपको नहीं हो रहा है कि त्रिशूल ने पहला ओवर किया, सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन दूसरा ओवर नहीं कर रहे हैं? गेंदबाजी में बदलाव नहीं, हर टीम का अपना एक गेम प्लान होता है क्योंकि उनको पता था कि अब बैट्समैन बाजू खोल चुके हैं। हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। जफर पटेल का फिर से हार्दिक स्वागत है। ज़ारा बैट ये साल उन्होंने लॉन्च की है और वाकई में ज़बरदस्त बल्ला है जिस तरह उसको बनाया गया है। फिलहाल कुरुन टीम के बल्लेबाजों के जो बल्ले हैं दोनों के हल्ला मचा रहे हैं, खासतौर पर वैभव। नीचे रहती हुई गेंद है, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी है ऑफ स्टंप के बाहर। और ये ज़्यादातर होता रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, जब भी कुरुन विलेज एंड से बॉलिंग हो रही है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर स्लाइटली फुलर लेंथ या फिर गुड लेंथ पर भी जब गेंदबाजी होती है तो अनइवन उछाल है। यस, कभी गेंदें ऊपर उठती है सीने के करीब तो कभी बैठ जाती है सबमरीन। सूरज एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये फुल टॉस है और ये जाएगी बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 6 रन। घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी हो तो खाने में वही मजा देगा। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर। जी हाँ, अभी भी जा रही है और जा ही रही है। 44 पर पहुंच चुका है स्कोर। मितेश 11 कुरुन टीम बहुत ही बढ़िया स्थिति में, कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है और केवल तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। तो बॉलिंग जो है उसके बारे में मैं बता रहा था कोशिम्बी टीम की। पहले मैच में भी उनकी टीम की ओर से ऋतिक ने 2 ओवर किए, दूसरे मैच में भी उन्होंने 2 ओवर किए, लेकिन इस मैच में प्रश्न चिन्ह है क्योंकि ऋतिक ने 1 ओवर में 25 रन खर्च किए हैं। टाइगर को ये ओवर क्या करना चाहिए था, बहुत बड़ा सवाल है। यस, पहला ओवर अच्छा किया था उन्होंने। इस बार बाहरी किनारा और आउट।
कॉट बिहाइंड, बहुत ही बड़ा झटका, लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद पेविलियन में लौटते हुए वैभव पाटील। दर्जेदार चेंडूचा मारा, ही भेटली सुपर ट्रॉफी विकेट। बल्लेबाज से दूर रखा, उनके आर्क में इस बार गेंद नहीं दी और उसका फायदा मिला है गेंदबाज सूरज को। ये देखिए बहुत दूर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास। बॉलर के नाम में थोड़ा सा करेक्शन है, 12वें खिलाड़ी अब हमें बता रहे कि अक्षय गेंदबाज है। प्लीज थोड़ा पहले ही बता दीजिएगा, कई बार हम थोड़ा दूर से देखते हैं तो उतना कई बार पता भी नहीं चलता है, और ख़ास तौर पर कुछ युवा खिलाड़ी आते हैं तो उनके नाम उतने जल्दी पता नहीं चलते, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो तो फिर आपको कोई भूल नहीं जाता है। यहाँ पर सूरज को विकेट मिला है, सख्त ज़रूरत थी विकेट की, सॉरी अक्षय को। अक्षय एक बार फिर से नए बैट्समैन सोनिया पठारे आते ही बल्ला घुमाया है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और आउट। अच्छा कैच। पिछले मैच में अराउंड दी लेग्स गेंद को छोड़कर शून्य पे बोल्ड हुए थे और इस मैच में मिड विकेट पे खेल के शून्य पे आउट। दर्जेदार चेंडूचा मारा, ही भेटली सुपर ट्रॉफी विकेट। ये कई बार देखने को मिलता है, एक बड़ी पार्टनरशिप जब बनती है, एक विकेट आपको मिलता है तो तुरंत उसके बाद एक और विकेट भी मिलता है। आते ही सिक्सर लगाने का प्रयास था, लेकिन डीप मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए सोनिया। वैभव ने 34 रन बनाए आउट होने से पहले, सोनिया खाता भी नहीं खोल पाए। तो तीसरे ओवर का खेल भी इसके साथ ही पूरा होता हुआ। स्कोर है 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 3 ओवर में 44 रन बने, बहुत अच्छा टोटल है। और बल्लेबाजी को आए नेवा पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे और 4 सिक्सर लगाए थे। अब कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है कि आखिरी ओवर कौन करेगा, लेकिन चौथे ओवर में राम ठाकरे खुद आए गेंदबाजी के लिए। पहले जो 2 मैचेस कोशिम्बी टीम ने जीते हैं, उन दोनों मैचेस में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन ये अब अलग तरीके का चैलेंज है, पहले आपको गेंदबाजी करनी है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी साबित हो सकता है कोशिम्बी टीम के लिए। हालांकि बॉलिंग उतनी पैनी वैसे देखने को मिली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स खर्च किए गए हैं, लेकिन बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है कोशिम्बी टीम के। तो चेस करते हुए ज़रूर कोशिम्बी टीम मैच जीत भी सकती है। हालांकि ये तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिलहाल स्थिति काफ़ी अच्छी है कुरुन टीम की। ये 2 ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिम्बी टीम के लिए। यदि गेंदबाज कम रन खर्च करते हैं, टारगेट क्या 65 के अंदर रख पाएंगे, ऐसा होता है तो ज़रूर एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। निवा पाटिल शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट, जबरदस्त बल्लेबाजी की पिछले मैच में। शैलेश सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी डटे हुए हैं। एक सिक्सर उनके बैट से निकला है 9 पर बैटिंग करते हुए। और करंट रन रेट यदि हम देखें तो 15 के करीब है, 14.67 रन प्रति ओवर, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। हेल्दी करंट रन रेट है। यस, अगर एक ओवर में और 10-15 रन आए तो आखिरी ओवर में मानो फिर कठिनाइयां और बढ़ सकती है कोशिम्बी की। राम ठाकरे पहले दोनों मैचेस में उन्होंने कुरुंद एंड से गेंदबाजी की है, लेकिन इस मैच में टोलना का एंड से हल्के से शॉट पुल कर दिया है, ताकतवर शॉट और मैदान के बाहर काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। टाइमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर, सुपर ट्रॉफी षटकार। देखिए मानो इस शॉट के इंतजार में वो बैठे थे, हालांकि गेंद उतनी उठी नहीं थी, लेकिन ताकत कितनी झोंकी है। बल्ले की स्पीड और बल्ले का स्विंग देखिए। ज्यादातर खड़े खड़े शॉट्स लगाते हैं। ओह, ये तो स्लॉट में ओवर पिच, एक और लंबा ऊंचा स्ट्रोक, एक और सिक्सर। टाइमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर, सुपर ट्रॉफी षटकार। 2 में 2 सिक्सर लगे, ये तो बहुत ही आसान सी गेंद थी। जूजी ऑफली थी और पहले ही अपने आप को ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा किया था। अब रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे, क्योंकि स्कोर को हम देखें तो कितना बना है 56।
यही होता है। देखिए पहले दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं शैलेश, लेकिन इस मैच में शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन एक छक्का लगाया, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है। धीमी गति की गेंद और फिर से तारामंडल में खाली क्षेत्र में भी खेला है, मैदान के बाहर लगातार तीसरा सिक्सर। टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर, सुपर ट्रॉफी षटकार। बबलू पाटिल ने अब कोई इनाम नहीं रखा है, उनको तो अब लग रहा है 3 पे 3 नहीं बल्कि 6 पे 6 भी लग सकते। गहरे दबाव में है गेंदबाज, अनुभव की कोई कमी नहीं है राम ठाकरे के पास, लेकिन इस समय जो स्थिति निर्माण हो गई है वाकई में काफी मुश्किल उनके लिए, वापसी करने का प्रयास करना होगा। अगली गेंद फिर से स्विंग किया है ऑन साइड में, ये तो प्रिय इलाका है, काउ कॉर्नर की दिशा में लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं। टाइमिंग प्रॉपर, 4 में 4 सिक्सर। अजय गरत ये बताइए कि पीटीसी में कितने ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 6 में 6 लगाए। आप मुझे सिटी क्रिकेट या भिवंडी ग्रामीण पूछेंगे तो मैं सबके नाम बता सकता हूं, लेकिन पीटीसी का मुझे एक पता है कि एक जगह अंजुमन में हम कमेंट्री कर रहे थे जब आपने बताया था कि कल इन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए। देखिए प्रलेश मुरांजन ने 6 गेंदों में 6 छक्के जरूर लगाए हैं, लेकिन वो सावध में लगाए थे। ओ बढ़िया शॉट, गैप में स्वीप किया और 4 रन। झाड़ू शॉट, क्या स्वीप खेला है। और ये लगा सुपर ट्रॉफी चौकार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शैलेश कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर 72, 72 रन। राम ठाकरे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट जाते हुए, शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल किया है, कैच का मौका हो सकता है। ओ मुश्किल अवसर था लेकिन कैच नहीं कर पाए, और देखना ये 4 है या 6। राम ठाकरे सोच रहे होंगे कि 2 रन से बच गया मैं, 6 पे 6 सिक्सर नहीं लगे, एक चौका लगा। जी हाँ, लेकिन 34 रन खर्च किए हैं राम ठाकरे ने। पिछले मैच में उन्होंने ठीक 34 रन बनाए थे बल्ले से, इस मैच में 34 रन अपने ओवर में खर्च किए हैं। बहुत ही खर्चीला ओवर, और 4 ओवर्स के पश्चात स्कोर हुआ है 78 रन। मितेश 11 कुरुन टीम बहुत ही जबरदस्त स्थिति में इस मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शैलेश, अर्धशतक लगाने का मौका है। और पच्चापुर में शैलेश ने यह कारनामा किया था कि उन्होंने, अभी अभी जानकारी हम तक पहुंची है, 10 गेंदों में 10 छक्के लगाए थे। तो शैलेश की ताकत का शायद अंदाजा नहीं था कई गेंदबाजों को। लेकिन त्रिशूल ने जो दूसरा ओवर नहीं डाला, बहुत कुछ सवालिया निशान छोड़ गया है। जी हाँ, गेम प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर नजर आई है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अक्षय के कंधों पर। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ ड्राइव किया, यहाँ पर रनआउट का मौका है और जाना होगा पेविलियन में निवा पाटिल को। दर्जेदार चेंडूचा मारा, ही भेटली सुपर ट्रॉफी विकेट। विकेट जरूर गिरा है निवा पाटिल का, लेकिन अब स्ट्राइक एक बार फिर से शैलेश पाटिल के पास, जो मात्र 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। सुपर ट्रॉफी का पहला अर्धशतक हो सकता है यदि वो जड़ देते हैं तो। देखिए अजय गरत, भिवंडी सिटी क्रिकेट में 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगा चुके हैं, नो डाउट एट ऑल। ग्रामीण में भी 4 से 5 बैट्समैन है, लेकिन 6 गेंदों में 6 चौके लगाना, सिक्सर लगाने से मुश्किल है। इसमें नाम नंदन पाटिल का 2 मर्तबा आता है, वो भी सिटी क्रिकेट में। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए पीटीसी के बल्लेबाजों का जिक्र करें तो माइटी महेंद्र मागे ने भी ये कारनामा 2 बार किया है, हीरामन शिलार 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं ग्रामीण क्रिकेट में। लेकिन मैं 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले को उससे बड़ा बैट्समैन पकड़ता हूँ। जी हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल है, हालांकि 6 गेंदों में 6 छक्के लगाना भी तो आसान काम नहीं है। अगली गेंद, शॉर्ट आर्म पोल गेंद हवा में है, काफी ऊपर खेल बैठे हैं, बाउंड्री ज्यादा लंबी नहीं है और मैदान के बाहर 6 रन। टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर,
सुपर ट्रॉफी क्या षटकार। शानदार बल्लेबाजी हो रही है सिद्दीक जी, गेंद की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। शैलेश 49 पर है, 1 रन दूर है अर्धशतक से, और गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई करता है। आपने Yes. कभी किसी ऐसे जानी दुश्मन की पिटाई की है? देखिए, एक ही बात कहूंगा कि अब अगर शाम की चाय की प्याली कोशिम्बी वाले उठाएंगे तो शैलेश नजर आएंगे। लाजवाब बैटिंग, कदमों का इस्तेमाल, ओहो आड़े बैट से प्रहार किया है, मिस टाइम है, और यहाँ पर कैच, जी हाँ 49 पर आउट हो गए। डिजर्व कर रहे थे अर्धशतक, लेकिन अर्धशतक नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी कमाल की बल्लेबाजी करने के बाद पेविलियन का रास्ता नापते हुए शैलेश पाटिल। दर्जेदार चेंडूचा मारा, ही भेटली सुपर ट्रॉफी विकेट। नर्वस 49 लेकिन कैप्टन नॉक, व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। कुछ बहुत ही खूबसूरत पुल स्ट्रोक उनकी इस इनिंग में थे, और 49 रन, कुल रन कितने हुए? 84। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल 96 है, 96 रन जय गणेश वाफाले बी टीम ने बनाया था। सुभाष के पास स्ट्राइक, इस बार जाने दिया, गेंद को बाहर की तरफ कटी थी और वाइड गेंद। अभी भी अंतिम ओवर में 3 गेंदे मेरे ख्याल से शेष है। जी हाँ, 3 गेंदे, 7 रन खर्च किए हैं इस ओवर में अभी तक अक्षय ने। रन संख्या 85। शॉर्ट पिच, पुल पुल, और गेंद मैदान के बाहर, गुल डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। टाइमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतो हवाई सफर, सुपर ट्रॉफी षटकार। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। एक और छक्का लगता है तो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम टोटल मितेश 11 कुरुन टीम के नाम हो जाएगा। इस समय स्कोर 91 रन, 96 का हाईएस्ट टीम टोटल है वाफाले बी के नाम। मिस टाइम स्ट्रोक, इस बार बॉलर प्रयासरत है लेकिन नहीं पहुंच पाए। डीप में से भी 3 खिलाड़ी गेंद की तरफ आ रहे थे, नो मैंस लैंड में जाकर गिरी, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था सुभाष मोरे के पास। अभी भी 1 गेंद पारी में शेष है। बहुत ही विशाल स्कोर, धमाकेदार बैटिंग खासतौर पर शैलेश पाटिल द्वारा। उससे पहले वैभव ने भी दमदार बैटिंग की, उन्होंने 11 गेंदों में 34 रन बनाए थे, और शैलेश ने 49 रन बनाए आउट होने से पहले। 14 गेंदों का सामना किया, और कुल मिलाकर 7 छक्के लगाए अपनी पारी में शैलेश ने। वैभव ने 5 छक्के लगाए थे। छक्कों की बारिश हुई है इस पारी में। अंतिम गेंद, ये भी शॉर्ट पिच गेंद, इस तरह की बॉलिंग नहीं की जा सकती है। और इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल 99 और ठीक 100 रनों की चुनौती 5 ओवर्स के खेल में शिव शक्ति कोशिम्बी टीम के सामने रखी है मितेश 11 कुरुन टीम ने। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी, अंतिम गेंद पर आकर्षक पुल शॉट सुभाष मोरे द्वारा। तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 100 रन बनाने होंगे, बहुत ही तगड़ा टारगेट है। हमारे बीच मंच पर जनाब जफर पटेल साहब है, AA स्पोर्ट्स और जारा स्पोर्ट्स के करता धरता है और प्रोप्राइटर है। जो बैट्स हम आजकल देखते हैं बल्लेबाज यूज़ करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, बहुत अच्छे बैट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके कंपनी द्वारा। उनका हम यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के फोकसमैन रोशन पाटिल के शुभ हाथों से। शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आप यहाँ पर आए हो और इस मंच की और टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ा रहे हो। तो 100 रन किस तरह से बनाए जाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि हम देखें तो कोशिम्बी टीम के पास भी ऐसे धाकड़ बल्लेबाज है जो आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं। खासतौर पर राम ठाकरे जैसी बैटिंग उन्होंने पिछले मैच में की थी, उससे भी शायद अच्छी बैटिंग करनी होगी। त्रिशूल ठाकरे को फ्लाइंग स्टार्ट ज़रूर देना होगा इस मुकाबले में। फॉर्म तो है उनके पास, लेकिन ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है अभी तक इस सुपर ट्रॉफी में। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन योगी मेरे साथ जुड़ते हुए।
योगी क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बल्लेबाजी रही है मितेश 11 कुरुन टीम की? शैलेश, ये एक तरह से सरप्राइज रहा सभी के लिए, क्योंकि पहले 2 मैचेस में वो 0 पर आउट हुए थे, लेकिन 49 रनों की पारी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। खरोखरच अलौकिक खेळी इथे मात्र पाहायला मिळाली ती म्हणजे शैलेश कॅप्टनच्या माध्यमातून. कारण या अगोदर आपण 2 सामने पाहिले तर शैलेशला खातं सुद्धा उघडता आलं नाही, परंतु या मॅच मध्ये त्याने 49 धावांची एक तुफानी आणि झुंजार इनिंग्स मात्र साकारली. सर्व क्रीडा रसिकांची मनं जिंकली आणि या स्पर्धेतल्या उच्चांक धावसंख्या मात्र मितेश 11 करून सांगणे या ठिकाणी जोडलेल्या आहेत. तब्बल 99 धावा आणि आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतात की या स्पर्धेमध्ये तब्बल 110 षटकार आतापर्यंत लागवलेले आहेत फलंदाजाने. आणि हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र 100 धावा इथे मात्र जोडावा लागतील. म्हणजे प्रति षटकामध्ये 20 धावांची सरासरी असेल शिवशक्ती कोशिंबी संघाच्या समोर. आणि तेच डोळ्यासमोर चित्र ठेवत असताना मात्र दोन्ही सलामीवीर राम ठाकरे विथ त्रिशूल ठाकरे, गोलंदाज सुभाष मोरे. या अगोदर आपण जर पाहिलं सुभाष स्लॉग षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी आला होता, परंतु या ठिकाणी कॅप्टनशिप पाहू शकता आपण. पहिल्याच पॉवरप्ले षटक आणि मात्र पहिल्याच षटकामध्ये सुभाषला प्रमोट केलं आणि पहिलाच चेंडूवर इथे मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळाली आणि मात्र ती अपील फलंदाजाने पंचांनी मात्र फेटाळली. अच्छी गेंद से शुरुआत की है सुभाष मोरे ने. राम ठाकरे इस मैच में ओपन करने आए हैं, पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर में खेले थे, क्योंकि टारगेट इस मैच में काफी बड़ा है. लोअर फुल टॉस उठा के खेल दिया है, फील्डर है डीप में, 1 ही रन मिलेगा राम ठाकरे को. पहला रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ कोशिमी टीम के लिए. नक्कीच जो संघ जिंकेल तो संघ पहिला सेमीफायनलचा सामना या सामन्यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळेल विकी स्पोर्टच्या अगेन्स्ट. विकी स्पोर्ट कुकचे संघ सुद्धा पूर्णपणे या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. कॅप्टनला विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. एका धावेने मात्र रामने आपल्या संघाचा आणि वैयक्तिक खातं उघडला, परंतु एकेरी दुहेरी धावेने काही सिद्ध होणार नाही. तुम्हाला मोठ्या फटक्यांची इथे मात्र आतिषबाजी खेळी करावी लागेल. हा चेंडू स्वेर आहे. डाव्या एसटीच्या पाठीमागे जात असताना पंचांची दोन्ही समांतर वाईटचा इशारा पाहायला मिळतोय. आणि नाणेफेकी जिंकण्यात राजे कॅप्टनने फलंदाजी करण्याचा निर्णय का घेतला होता त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण आपल्याला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतोय. जानते हैं कप्तान और पूरी कुरुन टीम की यहाँ पर गेंद काफ़ी ट्रैवल होती है, बड़े स्कोर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और बड़ा स्कोर आप बनाते हो तो चेस करना मुश्किल होता है. या दरम्यान नवनिर्वाचित पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय एकनाथजी देऊ पाटील साहेबांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून रोशन पाटील, निवा पाटील आणि त्रिशूल ठाकरे यांच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नवनिर्वाचित पंचायत भिवंडी समितीचे उपसभापती सन्माननीय एकनाथजी देऊ पाटील साहेबांचं या क्रीडा नगरीवर शुभ आगमन झालेलं आहे. वेलकम साहेब, तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, फिर से खेल शुरू हो रहा है. त्रिशूल के पास है स्ट्राइक, मात्र 1 रन इस समय स्कोर. सुभाष पुन्हा एकदा इथे मात्र शॉर्ट टर्म पुल खेळण्याचा प्रयत्न, छत्र काले आहे, खूप छान कनेक्शन आणि चेंडू मात्र निघून जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एका टप्प्याच्या साहाय्याने टायगरच्या बॅटमधून येणारा हा दमदार हिट चौकार. ये लगा सुपर ट्रॉफी चौकार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. पावर प्ले का खेल महत्वपूर्ण है. क्या पावर प्ले के 2 ओवर्स में 40 के आसपास रन्स बना पाएंगे बल्लेबाज? ऐसा होता है, और कम विकेट गिरते हैं या फिर विकेट नहीं गिरता है तो ज़रूर रोचक और दिलचस्प ये मैच हो सकता है. सामने ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी निवा आए थे, गेंद पर सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, और पीछे जब तक दूसरे खिलाड़ी उठाते 1 रन लेने का अवसर त्रिशूल ठाकरे के पास. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के. पूर्ण दिवसभराचा आपण जर खेळ पाहिला तर कोचिमी संघाने मात्र खूप छान क्रिकेट खेळला, परंतु या मॅच मध्ये कुठेतरी गोलंदाजाने निराश केलं. कारण अटकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळाली नाही, विकेट टेकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळाली नाही. त्याचमुळे फलंदाजाने त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला आणि मात्र वर्चस्व आहे या सामन्यावर. कुरुन संघाचा मॅच टायमिंग फटका चेंडू हवेत, ज्या रामने मात्र दुसऱ्या सामन्यामध्ये जबरदस्त काम केलं होतं, परंतु या मॅच मध्ये सुभाषने मात्र त्या फलंदाजाचा तमाम केलं आणि इथे मात्र एक छोटे इनिंग्स मात्र पाहायला मिळाले. रामच्या बॅटमधनं फक्त आपल्या संघासाठी एक धावाचं योगदान दिलं आणि माघारी परततोय बाद होणारा हा पहिला फलंदाज शिवशक्ती कोशिंबी संघाकडून.
स्पोर्ट कुक्षे संघाला की आपण अगदी व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे, कारण तुमच्या संपूर्ण संघाचं इथे मात्र कौतुक केलं जाणार आहे. नवनिर्वाचित उपसभापती सन्माननीय एकनाथ देव पाटील आणि त्यांच्याच वतीने त्यांच्या सौजन्याने तुम्हाला काही पारितोषिक सुद्धा इथे दिलं जाणार आहे. तर संपूर्ण संघाने टीमने इथे यायचं आहे. ओ बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट, पॉइंट की दिशा से निकाला है और 2 खिलाड़ियों को बीट किया. 4 रन, बहुत ही सुंदर शॉट. बबलू पाटील, आपण त्वरित आपला संघ घेऊन इथे यायचा आहे. चेनू पाटील, आपण सुद्धा यायचं आहे आपल्या संघाला घेऊन, कारण तुमच्या संघाचं इथे मात्र कौतुक केलं जाईल आणि तुमच्या संघाला काही पारितोषिक सुद्धा या ठिकाणी दिलं जाणार आहे. भिवंडी पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सभापती सन्माननीय आदरणीय एकनाथ देव पाटील यांच्या सौजन्याने. तर पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या पाहू शकता आपण. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये एकूण धावसंख्या 11. थोडासा वेळ आहे, तर आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या मान्यवरांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. एक खूप मोठी उपस्थिती आज या स्पर्धेमध्ये आम्हाला लाभलेली आहे. शिवसेनेचे नवनिर्वाचित भिवंडी पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय आदरणीय एकनाथ देव पाटील साहेबांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करत आहोत. या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय रोशन पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण आज सन्मान करत आहोत. साहेब, आपण या ठिकाणी आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी तुमच्या मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आणि विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचा सुद्धा इथे मात्र सन्माननीय उपसभापती यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाणार आहे, कारण त्यांची चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये राहिलेली आहे. कारण या संघाने सेमी फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि उपसभापती यांच्या वतीने काही पारितोषिक सुद्धा या संघाला दिलं जाईल. अभिनंदन विकी स्पोर्ट कुक्षे. एक चांगला मोमेंट, हॅपी मोमेंट मित्र म्हणे विकी स्पोर्ट कुक्षे संघासाठी, कारण नवनिर्वाचित सभापती एकनाथ देव पाटील यांच्या शुभ हस्ते संघाचं कौतुक केलं जात आहे. या संघाला शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. हे प्रेम आहे क्रिकेटवरचं, हे प्रेम आहे या संघावर. परंतु चालू असलेल्या सामन्याचा आपण जर विचार केला तर पूर्णपणे हवी आहे संघ, तो म्हणजे मितेश 11 कुरुन संघ. जी बिल्कुल, ये सही बात है. हालांकि इस ओवर की शुरुआत अच्छी रही है कौशिम्बी टीम के लिए. पहली गेंद पर छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से त्रिशूल ने, लेकिन दूसरी गेंद डॉट चली गई है. स्कोर इस समय 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. मैजिक फिगर चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौशिम्बी टीम को, यानी कि ठीक 100 रन. इस बार ऑन साइड में स्विंग किया है, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी, एलिवेशन अधिक प्राप्त नहीं कर पाए. फील्डर द्वारा गलती और गेंद सीमा पार. 4 रन.
मुकाबला होना है। इस मैच की विजेता टीम और विकी स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में इस सुपर ट्रॉफी 2021 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। चला क्षेत्रशील लावायचं आहे, प्लीज थोडंसं कॉपरेट करा टायगर निवा, कारण यानंतर सुद्धा आम्हाला एक सामना खेळवायचा आहे. 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 18 चेंडूमध्ये तब्बल 76 धावा इथून जोडायच्या आहेत. टायगर जिंदा आहे, परंतु टायगर हा एखादा विक्रम प्रस्थापित इथे करेल का? अशक्य आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये कुठलीही गोष्ट अशक्य नसते. गोलंदाज ओव्हर द विकेटने थोडेसे शफल झाले होते. ऑन साइडला ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणता संपर्क झाला नाही. एकदा पूर्ण केली आणि आता मात्र पंचांचा लेग बायचा इशारा. योगेश, कुरुन टीम का क्या गजब का दिन रहा है। कई कीर्तिमान उनके टीम के नाम, उनके खिलाड़ियों के नाम रहे आज के दिन के खेल में इस सुपर ट्रॉफी में। सोपान ने पहले मैच में 5 विकेट्स लिए थे, एकमात्र बॉलर है इस टूर्नामेंट में 5 विकेट्स लेने वाले एक पारी में। वाइड है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और साथ में ये रिकॉर्ड भी है 99 रन टीम का जो स्कोर बना है इस मैच में, सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एनी बॅट्समन शैलेश पाटील 49। खरोखरच आजचा दिवस आपण जर पाहिला तर पूर्णपणे या संघाने गाजवला आणि हा सामना जर त्याने जिंकला तर मात्र सेमीफायनलचा सामना मात्र त्यांना विकी स्पोर्ट कुक्से संघाच्या अगेन्स्ट मात्र आजच याच ठिकाणी याच वेळी मात्र खेळावे लागणार आहे. इथे मात्र थोडासा हेलिकॉप्टरचा अंदाज फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला, परंतु मैदानाच्या आतमध्येच मात्र हा हेलिकॉप्टर लँड झाला आहे. फक्त सिंगल धाव, कारण आता मात्र एक औपचारिकता शिल्लक आहे असं आपण म्हणू शकतोय, कारण अजूनही खूप लांब लक्ष पाहायला मिळतोय आपल्याला. कारण त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर मात्र रिक्षाने प्रवास करून आता चालणार नाही. रिक्षाने प्रवास केला तर तुम्ही फक्त कांदे गावापर्यंतच पोहोचू शकता. फुलटो चेंडू आणि इथे मात्र उडवलाय जबरदस्त शॉट सिलेक्शन, चेंडू मिड विकेटच्या बाहेर जातोय. 6 धावांचा षटकार. कारल्याचे डोंगराला ग, चैताचे महिन्याला ग, कारल्याचे डोंगराला ग, चैताचे. टाइगर वाकई में जिंदा है और टाइगर अभी भी बता रहे कि ये मैच भी अभी भी जिंदा है, मैच खत्म नहीं हुआ है। अच्छी बैटिंग करते हुए, बॉलिंग भी बढ़िया की थी उन्होंने, लेकिन दूसरा ओवर क्यों नहीं किया ये तो अभी भी सवाल बना ही हुआ है। काफ़ी चर्चा होती रहेगी आगे भी उसके बारे में। इस बार अपरकट करना चाहते थे, अच्छा उछाल प्राप्त किया, बीट किया बैट्समैन को, कोई रन नहीं। नक्कीच हा प्रश्न मी सुद्धा जे तुला विचारणार होतो, कारण पहिल्या पॉवर प्ले षटकामध्ये टायगरने फक्त 5 धावा खर्च केल्या होत्या, तर दुसरा स्पेलमध्ये तर टायगर आला तर धावांवर कुठेतरी अंकुश लगावला असतं, परंतु कुठेतरी चुकीचं डिसिजन पाहायला मिळालं आणि त्याच चुकीच्या डिसिजन मुळे मितेश कुरुन संघ भरपूर पुढे निघून गेला. अजून एक मोठा प्रहार पाहायला मिळतोय, हा चेंडू सुद्धा जाईल का? यस, इट इज 6 more runs. मीटिंग करू नका, लगेच छत्रशी सजवायचं आहे. चांगली फलंदाजी त्रिशूल आपल्या संघासाठी या ठिकाणी साकारतोय, परंतु गोलंदाजाने कुठेतरी आपल्या संघाला निराश केलं. त्याच कारणाने मात्र या सामन्यावर अजूनही आपण जर पाहिले तर अधिराज्य गाजवताना मितेश कुरुन संघ, कारण तब्बल 100 धावांचा टार्गेट आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅचसाठी. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुभाषने 11 धावा खर्च केल्या, दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर सोपानने 13 धावा खर्च केल्या आणि या ओव्हरमध्ये सुमितने तब्बल आपण जर विचार केला तर 15 धावा खर्च केला. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये आपल्याला धावसंख्या स्कोर हा वाढत जाताना पाहायला मिळाला, परंतु प्रत्येक षटकामध्ये ज्यावेळी इनिंग सुरू झाली त्यावेळी 20 धावांची सरासरी होती, परंतु ती सरासरी कुठेतरी मात्र या संघाला गाठता आली नाही. सोपान आक्रमण जारी रखते हुए 12 गेंदों में 61 रन, चौकों और छक्कों की बौछार करनी होंगी बल्लेबाजों को ये मुकाबला जीतने के लिए। सूरज के पास स्ट्राइक, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन होता हुआ सोपान को मिलती हुई सफलता.
आजचा दिवस आपण जर पाहिला तर खरोखरच सोपानने विकेट टेकिंग गोलंदाजी केली. त्यानंतर फलंदाज विचारत्र वैभव पाटीलने चांगली बॅटिंग केली. त्यानंतर या मॅचमध्ये कॅप्टन शैलेशने खरोखर सर्वांची मनं जिंकली. आणि आता मात्र दुसऱ्या स्पेलमध्ये पाहिलं तर काय सुरुवात करतो या आपल्या दुसऱ्या स्पेलच्या षटकाला. पहिल्याच चेंडूवर मात्र विकेटचं पतन. दरम्यान कुक्षे ग्रामपंचायतचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य जगदीश काशीनाथ पाटील यांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय या स्पर्धेचा. असा मित्रांनो दुसरा दिवस आणि या उद्यापासून तुम्हाला पीटीसी मधील बाहेरील संघ इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळणार आहेत. अनेक असे स्टार खेळाडू, अनेक असे मोठमोठे संघ तुम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना पाहायला मिळतील. परंतु जो सामना चालू आहे तो सुद्धा तेवढा ताकदीचा सामना होता. परंतु कुठेतरी आता एकतर्फा खेळ या मॅच मध्ये पाहायला मिळाला. नए बल्लेबाज विष्णु आए हैं. 8 विकेट्स अभी तक इस टूर्नामेंट में सोपान के नाम. टॉप एज है, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे जरूर, लेकिन कैच ड्रॉप. कॅच ड्रॉप झाली आहे. परंतु चेंडू मात्र पाहिलं तर सीमेरेषेच्या पलीकडे गेला आहे. पंचांचा इशारा चौकार. और इन 4 रनों की बदौलत स्कोर 43 पर पहुंचता हुआ. 43 रन, यानी कि अभी भी 57 रन चाहिए. 10 गेंदें शेष है. क्या विकेटों का सुपर 10 यहां पर पूरा कर पाएंगे सोपान? इस बार स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास, देखना है बैट से है या नहीं. डायरेक्ट हिट की कोशिश वहां पर, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा. तो अब तो केवल औपचारिकताएं शेष नजर आ रही है इस मुकाबले में. हालांकि बल्लेबाजी अच्छी रही है कोशिम्बी टीम की, मैं मानता हूं, क्योंकि रन हम देखें तो 44 बने हैं, लेकिन जब टारगेट की तरफ नजर डालते हैं तो फिर ये बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि टारगेट 100 रनों का है. हो नक्कीच. अजय या कागदावर किती मोठं नाव सुद्धा, परंतु तुमचं जर कार्य तसं नसेल तर मात्र त्या नावाला मात्र काही अर्थ नसतो. या अशा प्रकारची स्थिती. फुलटॉस चेंडू आहे, जबरदस्त कनक शॉट. चेंडू मिडविकेटच्या बाहेर निघून जाईल. टायगरच्या बॅट अजून एक दमदार हिट पाहायला मिळतोय 7 धावांसाठी. षटकार. इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए शिव शक्ति कोशिम्बी टीम के, और ये 50 रन 22 गेंदों में आए हैं. अच्छी बल्लेबाजी खास तौर पर त्रिशूल ठाकरे टाइगर द्वारा. ये टाइगर वाकई में दहाड़ रहा है. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी टाइगर की. लेकिन कल भी मैंने कहा था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है. मैच आपको जीतना है तो टीम एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 33 पर त्रिशूल ठाकरे खेल रहे हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला और गेंदबाजी बहुत खराब रही थी. इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया है और फील्डर बहुत पीछे ही रह जाएंगे. 4 रन. पालखी निघाली मानाची शिरली गावाला. पालखी निघाली मानाची शिरली गावाला. धन्यवाद. संघ धापांचा पाठलाग येथे मात्र करू शकत नाही, कारण अशक्य आहे. परंतु टायगरला एक संधी आहे की तुम्ही या मॅच मध्ये हाफ सेंचुरी 50 नक्कीच लगावू शकता, कारण आतापर्यंत 37 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आलेल्या आहेत. अजूनही या षटकानंतर एक षटकाचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळू शकेल. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतो, कारण ऑफस्टिकला मात्र शफल झाले. परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव सहजपणे पूर्ण केली. आणि आता मात्र चौथ्या षटकाचा खेळ सुद्धा इथे समाप्त. स्ट्राईक सुद्धा टायगरकडे असेल आणि वैयक्तिक 38 वर पोहोचतोय. आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर एकूणपणे 2 गडी बाद 55 धावा. 6 गेंदे 45 रन. तो वो चर्चा वाकई में जारी रहेगी कि टाइगर एक ओवर करते तो शायद चित्र थोड़ा अलग होता. टारगेट शायद कम भी हो सकता था, विकेट भी चटका सकते थे टाइगर. काबिलियत थी उनके अंदर, हमने तो देखा ही है, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने अच्छी की थी. पावर प्ले में 5 रन दिए थे, लेकिन वो ही बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने वो दूसरा ओवर नहीं किया. हालांकि युवा गेंदबाजों पर ज़्यादा भरोसा जताया गया, ऋतिक और अक्षय पर, लेकिन महंगे साबित हुए. और राम ठाकरे भी काफ़ी महंगे साबित हुए. राम ठाकरे तो ये मैच बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहेंगे. बल्लेबाजी में भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. नक्कीच अपसेट होत असतात. एखाद दुसरा सामना आपल्यासाठी लाभदायक नसतो, परंतु ही पहिली स्पर्धा आहे. तुम्ही खचून जाऊ नका. तुम्ही अजून चांगले प्रयत्न करू शकता पुढच्या स्पर्धेसाठी. इथे मात्र हो केला जातोय लाजवाब फटका डीप फाईन लेगच्या दिशेने. टायगरच्या बॅटमध्ये अजून एक दमदार हिट पाहायला मिळतोय. 7 धावांसाठी षटकार.
लिया तो बनती है। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं और वाकई में सभी के दिल जीतते हुए। बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज तरीके से वो शॉट खेला था उन्होंने। अच्छी गेंद शैलेश की, इस बार सम्मान दिया है। कोई रन नहीं इस गेंद पर। शैलेश जो खुद कप्तान है, टॉस के लिए वही आए थे और बहुत ही धुआंधार बैटिंग की उन्होंने। नक्की तो व्यक्तिगत 44 धावांवर खेळतोय या टायगर आणि मात्र पाहूया अर्धशतक झलकावतोय का या स्पर्धेमध्ये. फुलता चेंडू आहे, मेश टायमिंग पटका चेंडू हवेत. सोन्या पठारे चेंडूचा पाठलाग करतोय, झेल होऊ शकला नाही आणि मात्र चेंडू निघून जातो एका टप्प्याच्या साहाय्याने. 4 धावांसाठी चौकार. इनिंग्स जिथे मात्र पाहायला मिळाली अतिशय जबरदस्त फलंदाजी. या पहिला फलंदाज ठरतो या स्पर्धेमध्ये अर्धशतकी इनिंग झलकावणारा. तब्बल 17 चेंडूमध्ये 52 धावा त्याच्या बॅटपर्यंत पाहायला मिळाल्या. काय सेलिब्रेशन पाहिलं आपण. मनामध्ये नक्कीच दुःख असेल परंतु चेहऱ्यावर थोडंसं हास्य पाहायला मिळालं. इथे मात्र थोडंसं हेलिकॉप्टरच्या अंदाजामध्ये फटका खेळायचा होता परंतु चेंडू कासोछाप गतीने मात्र ट्रॅव्हल झाला ऑन साईडला. स्वतः गोलंदाज जाऊन चेंडू मात्र फील करतोय. तत्पुरती एक धाव या ठिकाणी सहजपणे पूर्ण केली. या इनिंग मधील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक कारणाने फेस करेल फलंदाज विष्णू. चेंडू हवेत, कॉटन बॉलची शक्यता आणि यस इट इज आउट. आणि याच बरोबर सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ ठरतो या सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये मितेश 11 कुरुंद. अभिनंदन आणि हार्ड लक राम ठाकरे कंपनी. तर दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचा कॅप्टन आणि मितेश 11 कुरुंद संघाचा कॅप्टन. मुकाबला जरूर मितेश 11 कुरुन टीम ने जीता, लेकिन सही मायनों में सभी दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब रहे त्रिशूल ठाकरे. आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण देणार आहोत ज्याने अतिशय जबरदस्त इनिंग साकारली आपल्या संघासाठी. नो डाऊट ज्यांनी 49 धावांची तुफानी केली, साकारली आणि गोलंदाजी करत असताना एक विकेट्स प्राप्त केला तो आहे मितेश 11 कुरुंद संघांचं शैलेश. आपण यायचं आहे व्यासपीठावर पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी. मिस्टर शैलेश पाटील यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार परिधान करायचा आहे. शैलेश पाटील आणि त्यानंतर माजी क्रिकेटपटू मिस्टर शैलेश पाटील, गणेश पाटील आपल्याला विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण जी केक पेस्ट्री आहे ती आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी परिधान करायची आहे. वेल प्लेड शैलेश, अतिशय जबरदस्त तुम्ही खेळ प्रस्थापित केला आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी, आपल्या नावासाठी. आणि आता मात्र मित्रांनो कुठेही जाऊ नका. ज्या सामन्याची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो तो क्षण आपल्या समोर काही क्षणातच इथे मात्र येणार आहे. आणि सामना सुरू होण्या अगोदरच आम्ही या ठिकाणी एक पारितोषिक जो आहे तो अनाऊन्स करतोय. कारण या स्पर्धेमध्ये एक वेगळं पारितोषिक आहे, प्लेअर ऑफ द डे. कालचा दिवसाचा खेळ पाहिला तर बाजिल शेख ठरला होता आणि आजच्या दिवसाचा आपण जर खेळ पाहिला तर 3 सामने त्यांनी खेळले. 3 सामन्यामध्ये आपण जर विचार केला तर अतिशय जबरदस्त कामगिरी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली. तब्बल 81 धावा आणि चांगली गोलंदाजी केली तो खेळाडू आहे. आणि या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक इनिंग त्याच्या बॅटमध्ये पाहिली तो खेळाडू ठरतो त्रिशूल ठाकरे. आणि कॅप्टनला विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. विकी स्पोर्ट कुक्से विरुद्ध मितेश 11 कुरुंद, पहिली सेमी फायनलची मॅच.
प्लेअर ऑफ द डे साठी आपण पाहू शकता 6 अँड आउटच्या माध्यमातून एक तर सुंदर बॅट दिली जाणार आहे. तर टायगर आपण त्वरित यायचं आहे व्यासपीठाकडे. तत्पुरते आपण नाणेफेकी करून घेणार आहोत. तर दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी हा सामना सुद्धा 5 षटकांचाच असणार आहे आणि हा सामना आम्ही अंधार झाला किंवा नाही झाला तर आम्ही कंप्लीट करणार आहोत. या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. टायगर आपण यायचं आहे व्यासपीठावर. प्लेअर ऑफ द डे मिस्टर त्रिशूल ठाकरे ठरला आहे आजच्या दिवसातील प्लेअर ऑफ द डे. आणि माजी क्रिकेटपटू मिस्टर गणेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण जे आम्हाला 6 अँड आउटच्या माध्यमातून बॅट लाभलेले आहे ते आपण या ठिकाणी परिधान करायचे आहे. वेल प्लेड टायगर. नक्की तुम्ही या सामना गमावलेला आहे परंतु सर्व क्रीडा रसिकांची मात्र मनं जिंकली आहेत आज पूर्ण दिवसभरामध्ये. तसेच सन्माननीय रामचंद्र शिवा ठाकरे कोशिंबी यांच्याकडून टायगरसाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज ते आपण देतोय निवा पाटील यांच्या शुभ इथं हस्ते. टायगरसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो. खूप छान त्यांनी या ठिकाणी आज खेळ प्रस्थापित केलेला आहे. तर टॉस बॉक्स मध्ये माझ्या समेत जोडलेले आहेत विकी स्पोर्ट कुकचे संघाचे कॅप्टन पंकज पाटील आणि मितेश 11 करून संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा त्वरित यायचं आहे. शैलेश पाटील आपण जास्त वेळ दौडू नका कारण सायंकाळ झालेली आहे आणि 5 षटकांचा सामना असणार आहे. तर नाणेफेकीसाठी मी विनंती करतो मिस्टर शैलेश पाटील आणि मिस्टर गणेश पाटील दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. शैलेश पाटील आणि गणेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्याची नाणेफेकी करणार आहोत. आणि मित्रांनो हा सेमीफायनलचा सामना आहे सर्व क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी. पीटीसी असा कॉल आहे यस आणि तेच आलेला आहे म्हणजे हा नाणं जातोय मितेश 11 करून संघाच्या बाजूने. शैलेश आपण डिसिजन कळवायचं आहे. तर आपल्याकडे वेल नाहीये तर दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस जिंकलेला आहे मितेश 11 करून संघाने आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. ओव्हर टू यू कॉम बॉक्स. थँक्यू. कुकसेगावचे युवा पोलीस पाटील सन्माननीय प्रमोदजी काशीनाथ पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय आयोजकांच्या वतीने.